تم جو سوچتے ہو تمہارا اندر میں شیطان گھسا ہوا ہے، اسی لیے تم اس طرح کا بات کر رہے ہو. نہیں، وہ تو آپ کے اندر غصہ ہوا ہے، کیونکہ صرف اور صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہمارے لوگوں کی رگوں میں خون ہم کی لوگ طرح اس کو دوڑتا ہے. مانتے ہیں. تو کیا دیکھو بات شیطان سنو، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ ہم کون سا نہ کہہ رہا ہوں، تو ہمیں بھی پتا ہے کہ شیطان ہمارے رگوں میں خون میں دوڑتا رہتا ہے. ہم واک اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 کا پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. اداہرنوں، چھویوں اور سندربھوں سمیت یہ ویڈیو کیول منورنجن، سوچنا اور شیکشنی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ گتیویدھیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں جب سے ایکس مسلم موومنٹ اسٹارٹ ہوا ہے تب سے سب کے سامنے بہت ساری باتیں ایسے کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو غیر مسلم تو کیا خود مسلم بھی نہیں جانتے تھے. اسلامک کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جسے بتانے میں اسلامک اسکالروں کو بھی شرم آتی ہے. اسلامک اسکالر کبھی بھی نہیں چاہتے ان کی چھپی ہوئی باتیں کسی کو پتہ چلے. اسی لیے کوئی بھی نامی گرامی اسلامک اسکالر کسی بھی ایکس مسلم کی لائیو اسٹریم میں ڈیبیٹ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہے. تو آئیے آج دیکھتے ہیں مومنوں کی رگوں میں کون دوڑتا ہے. اور ہاں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو اچھا لگ گئی یا برا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. سید اشرف بھائی، ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو، جی سر، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ مجھے بات کرنی ہے. آپ لوگ جو یہ چینل چلا رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے یہ بتائیے. سر، جو سماج دعویٰ سدھرے گا. چینل چلاتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے دعویٰ چینل چلانے کا؟ دیکھیے، دعویٰ چینل اسی لیے چل رہا ہے کہ آپ لوگ پہلے یہ چینل کھولے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، تو اس نہیں کے سید اشرف وجہ بھائی، سے جو ہے سید اشرف بھائی، ہم آپ نے اپنے لوگ جو ہے چینل آپ لوگ کو بات کو توڑنے کے لیے جو ہے آپ لوگ انسان کو گمراہ کر رہے ہیں. سید اشرف بھائی، گمراہ اللہ میاں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. لیکن ہمارے چینل کھلے ہوئے صرف 4.5 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دعویٰ چینل اس بات سے بہت پہلے سے میں چل بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، برابر. اب بات یہ ہے کہ دعویٰ چینل کیوں چل رہے ہیں؟ دعویٰ چینل چل رہے ہیں دین اسلام کو سکھانے کے لیے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ چینل چل رہے ہیں دین اسلام کو جھوٹ طریقے سے سکھانے کے لیے. ہم دین اسلام سکھا رہے ہیں لیکن سچے والا. یہ فرق ہے. کہ بڑی آپ آواز ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسلام غلط ہے، ٹھیک ہے. نہیں سر، اسلام میں تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے اسلام محمد غلط صلی ہے. اللہ علیہ، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو کہہ اسلام رہا کو ہوں غلط اسلام نہیں بہت کہہ رہے اچھا ہیں تو ہے. کیا کہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں تو اسلام آپ بہت لوگ تو اچھا ہے. اسلام تو چھوڑ دیے، مطلب اسلام اگر اچھا ہے تو آپ لوگ چھوڑ کیوں دیے؟ اسلام بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے تو میرا بات کا جواب دیجیے کہ آپ اسلام چھوڑ کے ایک مسلم کیوں بتا دیے؟ آپ ایک ہندو بتا سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں، بولتے ہیں عام انسان، ایسا ہی بولتے ہیں. ایک ہاں تو میں نے مسلم بھی اپنے بولنے آپ کا کو، کیا مطلب میں نے کہاں لکھا ہوا ایکس مسلم؟ بدلی کریے. میرا نام لکھا ہوا ہے ایڈم سیکر. بھائی ایڈم فکر تو لکھا ہے، اس کا پہلے بھی تو اس میں آپ کا جو اسکرین میں ہے نام کا جو ہیڈ لائن ہے اس میں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک مسلم لکھا ہوا ہے اس میں. نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے ایکس ایک مسلم؟ یہ مسلم دیکھیں میرے نام کے یوٹیوب اوپر میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. میرے نام پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ایڈم ایڈم سیکر فکر کہاں لکھا لکھا ہے ہے؟ نا. یوٹیوب کا ہر چینل میں ہم دیکھتے ہیں ایک مسلم، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا میں نام نے سے تو نہیں لکھا ہوا. ہیڈ لائن کا لکھتے ہیں نا بھائی صاحب، ایک مسلم. نہیں لکھا ہوا میرے چینل میں، کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اب مفتی صاحب سے، جو کوئی بھی مفتی صاحب، بڑے بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے جو چینل میں ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ ایک مسلم ہیں. اس مومن کی باتوں سے صاف ہو جاتا ہے کہ ایکس مسلم مفتیوں کے چینل پر جا کر ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. کمنٹ کر کے بتائیے کوئی مفتی ایکس مسلم چینل پر ڈیبیٹ کرنے کبھی آیا ہے کہ نہیں. آپ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم میں لوگ تو ایک نہیں مسلم بولتا ہیں؟ بھائی، نہیں بولتا میں. مان کے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں بولتا سر، ہاں، میں نہیں بولتا ہوں. تو جو کیا بولتا ہے اس آپ کو جا اپنے کے آپ کو پوچھیے. مسلم بولتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے نہیں آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، وہ بات ہے نا. نہیں نہیں، میں تو نہیں سمجھتا. تو کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ جو اتنا آدمی کو گمراہ کر رہے ہیں جی تو جی، اس کا نہیں گمراہ نہیں کیا کر رہا، وہ اللہ مطلب ہے؟ کرتا مطلب آپ حضرت، وہ ہاں، اللہ کرتا ہے گمراہ، میں گمراہ نہیں کر رہا. وہ اللہ کا کام ہے گمراہ کرنا. تو آپ یہ چینل جو بنا کے آپ آدمی کو بلا بلا کے سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، تفسیر سنا رہے ہیں، سنا کے بدنام کر رہے ہیں، بول رہے یہ غلط بات ہے، غلط نہیں بات نہیں ہے، حضرت، میں تو یہ ہدایت دے رہا کیا ہوں. کر رہے حضرت میں ہیں؟ اس کو ہدایت دے ہدایت رہا دینا ہوں. بولتے ہیں. جی اس حضرت. کو ہدایت دینا بولتا ہے. بتائیے، کسی جی کے حضرت. بارے میں برا کہنا اس کو ہدایت بولتا ہے؟ جی حضرت، بالکل. یہ اگر اس کو ہدایت بولتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو کسی کو تو فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ ہدایت والی جو ہے ٹاپک چالو رکھے ہیں، اچھا، چینل چالو بالکل رکھے ہیں، بالکل. میں تو ایک فالو چھوٹی سی کرتے بات ہیں. کر دیں، ایک بات کریں چھوٹی سی. جو بندہ دنیا میں جس بھی بندے نے اس طریقے سے دوسروں کے دھرموں مذہبوں کے خلاف بولا ہو، آپ کہہ دیں کہ وہ بہت ہی زیادہ جاہل اور جہنمی شخص ہے. پلیز بول دیجئے. دھرم کو کیوں کہنے جائیں گے؟ کیوں آرگومنٹ کرنے جائیں گے بھائی صاحب؟ جی میں یہی کہہ ہم رہا ہوں، بس جس نے آدمی کو کہا ہو، اچھا
अच्छा तालीम सर देते हैं ना जिसने कहा इंसान हो, को। जिस किसी ने भी कहा है दुनिया में, आप कह दें कि वो इंतहाई बेगैरत शख्स है, कह दें प्लीज। मुझे पता है भाई साहब, आप टॉपिक जो है पलटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा पूरा नहीं नहीं, बात मैं आप सर सुनिए पहले, आपकी तो आप बात देखें, आप देखें, हर बात का जवाब देंगे। अगरचे आप अनपढ़ और जाहिल हैं, लेकिन आपको समझ आ गई है इस बात की कि आप कह नहीं सकते कि जिस किसी ने काफिरोफोबिया फैलाया हो, जिस किसी ने दूसरे के धर्मों के बारे में गलत बातें की हों, उसको आप जाहिल भी नहीं कह रहे और उसको आप बेगैरत भी नहीं कह रहे, क्योंकि आपको पता है अगर कह देंगे तो ये बात कहां जाके हिट करेगी। अब जाहिर जो सर बोल पहले रहे हैं जो मैंने अब बोला टॉपिक है, जो है, सर हजरत मैंने बोला है कि जिस शख्स ने किसी दूसरे के धर्मों को बुला भला कहा है, उसको आप जाहिल और बेगैरत कह दे मेरे सामने प्लीज। ये मोमिन तो क्या कोई भी मोमिन ऐसा नहीं बोलेगा, और उसका क्या कारण है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं जाहिल का मतलब पहले जानना चाहता हूँ कि जाहिल किसको बोलता है, हजूर उसके सल्लल्लाहु बाद अलैहि मैं वसल्लम जो थे वो कुरान के मुताबिक उम्मी थे, और उसकी ट्रांसलेशन होती है अनपढ़, और डिक्शनरी में अनपढ़ और जाहिल सिनोनिम है, तो लिहाजा तो आप हजूर मानते सल्लल्लाहु हैं, अलैहि वसल्लम भी तो अनपढ़ आप और जाहिल मानते हुए। हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल थे, मैंने उनको दुनियावी कोई इल्म नहीं था, ये आप मानते हैं, सही बात जी है? हजरत, नहीं दुनियावी नहीं दीनी भी इल्म नहीं था उनको। जाहिल और अनपढ़ वो होता है जिसको किसी किस्म का इल्म ना हो। हाँ, तो दुनियावी कोई भी इल्म नहीं था, ये मानते हैं आप, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आगे कहीं नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान मजीद इतना बड़ा किताब, इतना रेस्पेक्टेबल किताब जो है हमारे नबी पाक अल्लाह ने भेजे हैं, तो वो कहीं नहीं मान रहे कि वो सच है। आप ये मान रहे कि जाहिल थे, तो ये कहाँ से मिला आपको? तो वहीं से तो ये भी मिला ना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। हर हर काम जो है जो भी करते थे, ये काम करते थे, कोई आदमी को झूठ नहीं बोलता था, कोई खराब नहीं बोलता था, कोई गलत काम नहीं करते थे। हर जो भी काम करते थे आदमी मान लेता था कि हाँ ये सही किए हैं, सर एक सेकंड, आप चार ये सब बातें मान इकट्ठी ना लेता था। बोलें। तो हाँ, आप चार बातें इकट्ठी ना बोलें, क्योंकि मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे चारों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह को? मैं मानता हूँ। और मैंने कब कहा है कि मैं मोहम्मद के वही को नहीं मानता? मैं टॉपिक से आप मानता हूँ। दूसरे जगह जा रहे हैं। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जाहिल थे दुनियावी हाँ, और आखिरत का जो इल्म है, दोनों से आप जो है जाहिल थे, उम्मीद है। जाहिल थे। हाँ हाँ, तो उम्मीद हाँ। में है, तो जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किए हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जब जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजे, या हमारे नबी ने कहा, उनको उनको अल आमीन बोल के सब कोई जानता था कि अरबी अरे वाले भाई जो है आगे नहीं सच चले, बोल। आगे नहीं चले, आगे नहीं चले, क्योंकि कुरान में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी की और अल्लाह को बताना पड़ा कि नहीं मोहम्मद ने चोरी नहीं की, मुसलमान उन पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। आगे नहीं चले। तो अब आप आपने मुझे टॉपिक पूछा में है, जा रहे हैं, ये तो गलत तो बात है इसलिए भाई आगे ही साहब। ना आप चले। पहले लिहाजा भाई ईमान और ईमान पे ना जाए, ईमानत दानी पे नहीं जाए, रुक जाए। आपने कहा मुझसे कि फिर आप क्यों बस नहीं बस मानते? हट गया, समझ में आ गया। अब जो है टॉपिक से हट रहे हैं, हाँ पहले जी हजरत, इसको ठीक तो है। कंप्लीट करिए कि हमारे नबी हाँ ना पर आप सुनेंगे, सुनो, तो सुन तो सवाल करते हो, जवाब क्यों नहीं सुनते? सुनो, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं मानता कि मोहम्मद पे वही नहीं आती थी? कब मैंने कहा है? मैंने कहा है? इनकार किया? बोलो। तो फिर गलत क्यों पकड़ रहे भाई? अल्लाह ने जब वही भेजा है, तो अल्लाह तो हाँ कुछ समझ के ही भेजा है ना। तो ऐसा नहीं, तुम हाँ अल्लाह का भी बराबरी करना शुरू कर दो, तुम अपने आप को अल्लाह समझना शुरू कर दो, जैसे तुम अपने आप को पूरा पैगंबर समझना शुरू कर दे रहे हो। तुम क्या अपने आप को पैगंबर समझते हो जो भाई इतना हुज्जत कर रहे हो, रुको, तुमको समझा रहे हो? मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जो मोहम्मद साहब का अल्लाह था वो एक शैतान था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शैतानी वही आती थी, और उस वही को जब अब ये हम शैतान कहाँ से आ पढ़ते गया, हैं। ये बताओ, ये शैतान कहाँ से आ गया? शैतान कौन है? अल्लाह। तो शैतान क्यों नाम दे रहे हो भाई साहब? ये अल्लाह शैतान का नाम शैतान है कहाँ ना? से मिला? नहीं, तो ये नाम शैतान का कहाँ से था। मिला? शैतान, इन जो शैतान शैतान कर रहे हो, वो नाम कहाँ से मिला तुमको? जी जी, वही बता रहा हूँ आपको। शैतान, अल्लाह मियाँ शैतान है, हाँ, बताओ। और जो शैतान है, एक शैतान है अरे अबलीस। यार, अबलीस से जो बड़ा शैतान है वो है ये अल्लाह। बात ये छोड़ दो कि अल्लाह मियां क्या है, वो छोड़ दो। शैतान जो है वो कहाँ से मिला, ये बताओ मेरे को। अल्लाह है ना शैतान। अरे यार, सही में तुम दूसरों को जाहिल बोलते हो, तुम खुद ही जाहिल समझते नहीं हो बात को। मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, शैतान का जो लफ्ज मिला है, तुम खाली अल्लाह को शैतान जो शैतान लफ्ज जो है कैसे आया है? वो हिस्ट्री को तौरात से, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पता ही नहीं है क्या? तौरात से आया। लगता है एडम भाई आज अलग तरीके से बैटिंग करेंगे। शैतान की हिस्ट्री बताओ, शैतान कैसे हुआ? वो शैतान उसका नाम कैसे हुआ?
शैतान का कोई नाम ही नहीं, शैतान एक चीज है, एक एंटिटी है, अबलीस अऊज़ु नाम है बिल्लाहि उसका, मिनश मैंने अबलीस की बात शैतानिर नहीं रजीम, की। शैतान का नाम कुरान शरीफ में है, अऊज़ु बिल्लाहि हाँ, मिनश शैतानिर रजीम है कुरान कुरान मजीद शरीफ में में, भी है, तो हाँ फिर वही वो तो कह रहा हूँ, शैतान का अल्लाह भी एक नाम शैतान है नहीं है। ना। अल्लाह, ये सही में तुमसे इसीलिए मैंने पढ़े लिखे इंसान कोई डिबेट करने की नहीं आता है, तुम जो है जाहिल वाला बात करते हो, और जो भाई पढ़े मैं लिखे कह रहा वाला हूँ बात अल्लाह आदमी एक करता है शैतान है, आप तो साबित करें कि नहीं है? भाई तुम जो सोचते हो तुम्हारा अंदर में शैतान घुसा हुआ है, इसीलिए तुम इस तरह का बात कर रहे हो। नहीं, वो तो आपके अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, शैतान हमारे इब्लीस लोगों था, की रगों में शैतान खून हम की लोग तरह इब्लीस को दौड़ता है। मानते हैं। तो क्या देखो बात शैतान सुनो, आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? मेरा बात सुनो, सुनाओ। शैतान इब्लीस होता है ना, नहीं, इब्लीस अबलीस जो है उसको अबलीस शैतान। एक शैतान है। रुको रुको, तुम्हें पता नहीं है सईद अशरफ, अबलीस एक शैतान हाँ है। शैतान एक कौम हाँ है, और उस कौम में एक हाँ शख्स है, उसका नाम है अबलीस। हाँ। मगर शैतान जो है आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। अगर पूरी दुनिया में एक ही अरे मेरे शैतान है रगों तो को शैतान छोड़ो ना, ओमनी प्रेजेंट है। रगों को, भाई हमारे रगों को छोड़ो, पहले बोलो शैतान का क्या हिस्ट्री है, इब्लीस का क्या हिस्ट्री है, इब्लीस नाम कैसे आया, शैतान कैसे आया, मुझे ये अबलीस बताओ का मेरे को। अबलीस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे इब्लीस, शैतान का असली नाम इब्लीस ही है तो। नहीं, शैतान का असली नाम इब्लीस नहीं है, एक शैतान का नाम इब्लीस है। शैतान का असली नाम इब्लीस नहीं है। शैतान का मतलब होता है भाई डेविल। तुमको मालूम नहीं है, अब तुम साबित कर दोगे कि शैतान का नाम इब्लीस नहीं है, उसका ओके, और एक भी तो नाम है, इसका वो चलो ऐसा करते साबित हैं, कर दो। मैं आपकी हुज्जत पे जाता हूँ। आपके मुताबिक अबलीस एक है जो कि शैतान है, करेक्ट? और कोई हाँ शैतान नहीं है, करेक्ट? हाँ हाँ। शैतान अल्लाह है बेसिकली। ये देखिए बताते अरे हैं यार कि शैतान, तुम शैतान कैसे साबित आपकी करोगे बॉडी के अंदर, हजरत आपको जरा हदीस पढ़नी पड़ेगी। शैतान आपकी बॉडी के अंदर आपकी रगों में दौड़ता है। इसका मतलब है कि भाई अल्लाह तो किसी, सुनो, यार चुप, यार चुप, जितना बोल लिया। अब मैं रेफरेंस दिखा रहा हूँ, बोलने तो दो। निकालना पड़ेगा फिर आपको, सब्र कर लो। देखो, ठीक है शैतान ठीक है ठीक आपकी बॉडी में रगों में खून के साथ दौड़ता है, अल्लाह नहीं दौड़ता आपकी बॉडी में। कुरान और इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ओमनी प्रेजेंट नहीं है, शैतान ओमनी प्रेजेंट है। कहीं किसी कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि बस आपका ये बेसिक समझ अकीदा गया, है। अब समझ लेकिन गया बस। शैतान ओमनी प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए, शैतान बड़ा हुआ या अल्लाह? बस एक ही बात को दोहराने का, टाइम लॉस करने का फायदा है, मैं तो बोल रहा हूँ, समझ गया हूँ, तुम्हारा बात समझ गया, अब मेरा बात सुनोगे। मैंने सिंपल सवाल किया है कि शैतान ओमनी प्रेजेंट है, अल्लाह नहीं है, तो हु इज बिगर, शैतान या अल्लाह? भाई शैतान हमारे रग में दौड़ रहा है, ये हम कौन सा ना कह रहा हूँ, तो हमें भी पता है कि शैतान हमारे रगों में खून में दौड़ता रहता है, पर उसको जो है ओके, इससे ये साबित नहीं ना हो रहा, तुम्हारा टॉपिक से क्यों हट रहे, दूसरा अल्लाह बात अल्लाह तो करो। आपके सुना आप लोगों ने, मोमिन खुद मानते हैं उनकी रगों में शैतान दौड़ता है। अल्लाह तो आपके अंदर नहीं है ना। अरे अंदर में क्या है नहीं है, उसको क्या लेके आ रहे हो, तो दूसरा टॉपिक हो जा रहा है ना ये। पहले इसका ये मतलब है बताओ, शैतान शैतान बड़ा जो हुआ ना। है, शैतान इब्लीस कैसे पैदा हुआ, वो एक जिन्नात जिन जिन हमारे से भी दुनिया में इंसान से पहले जिन जिन का खानदान रहता था, जिन्नात था, उनके बच्चे, उसका और एक तो नाम है, वो तुमको नहीं मालूम है, उसका और एक नाम क्या है बताओ, असली नाम क्या था, देखो, नहीं जिन जो मालूम। थे उनमें से एक शख्स ने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, ठीक है? उसका उस नाम शख्स का इब्लीस। नाम था इबलीस, ठीक है? अल्लाह हाँ ने तो कहा और तुम एक तो आज नाम, वो नाम क्या है बताओ? अल्लाह ने कहा तुम आज से हो गए हो शैतानों की सफ में, तुम शैतान हो गए हो, अगरचे तुम जिन हो, लेकिन तूने चूंकि आदम को सजदा नहीं किया, ए अबलीस, नाउ यू आर ए शैतान, तुम अब एक डेवल हो, फुल स्टॉप। अब बात यह है कि इसका मतलब है अबलीस के अलावा भी 3600 और शैतान है, और अल्लाह उन सबसे बड़ा शैतान है। दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग। ये तो ये वाला बात तुम मान रहे हो कि ये वाला बात सच है कि शैतान बोल के है, इब्लीस बोल के है, जो अल्लाह का बात को नाफरमानी किया है, ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, बताओ मुझे। जिसने आदम को सजदा नहीं किया है। हाँ तो वो शैतान हुआ, इब्लीस हुआ, जी ये मान रहे हो नहीं मान रहे हो, ये जी, बताओ। मैं मान रहा हूं। जो मान रहे हो तकब्बुर तो किया, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? हाँ अल्लाह कुरान में कहा है कि हाँ ओ जिन, तूने तकब्बुर किया है, लिहाजा तूने तकब्बुर हाँ किया है तो तू जहन्नम, तू तू शैतान हो गया क्योंकि तूने तकब्बुर किया है, करेक्ट? हाँ, सही यही बात कहता है, है ना अल्लाह? बिल्कुल सही बात।
क्योंकि उसने बिल्कुल तकब्बुर सही किया। बात है, ये तो तुम्हारी बात मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, आई एम एग्री विथ यू। बेहतरीन हो गया। ये देखिए सर, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अल्लाह मियाँ कुरान में कहता है हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर। المتكبر अब मुझे बताइए, अल्लाह भी हाँ कुरान में मुतकब्बिर कह रहा है, तो अगर शैतान ने तकब्बुर किया इस वजह से वो शैतान हुआ है, इब्लीस ने तकब्बुर किया तो शैतान हुआ है, तो अल्लाह ने तकब्बुर किया तो अल्लाह भी शैतान ही है ना। देखो भाई, अब ये अभी पकड़ो, शैतान ने तकब्बुर किया अल्लाह से, शैतान को किसने शैतान ने बनाया? तकब्बुर नहीं, रुको, शैतान ने तकब्बुर नहीं किया, जिन ने शैतान को तकब्बुर किसने किया। बनाया पहले बताओ मुझे। रुक जाओ, पॉज। जिन ने तकब्बुर किया तो वो शैतान हुआ, शैतान ने तकब्बुर हाँ नहीं किया। हाँ हाँ, जिन ने तकब्बुर किया वही, तो वो शैतान हुआ। वो जिन भी नहीं, उसका ऐसे है असली ना, नाम तुमको पता ही नहीं, उसका असली नाम तुमको पता ही नहीं है, तो वो तो कोई तुम बात बोल ही नहीं, नहीं पाओगे। चलो कुरान में भी नहीं है, कुरान में इंग्लिश भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, तुम तफसीरों में जा रहे हो, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी तफसीर में, कोई मसला नहीं है। अभी हाँ, तो जिन ने वो नाम तकब्बुर तुमको किया, मालूम नहीं है। जिन ने तकब्बुर किया तो वो हो गया शैतान। अगर अल्लाह ने तकब्बुर किया तो वो शैतान क्यों नहीं? भाई जिन को अगर शैतान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना, दूसरा कोई थोड़ी नहीं बनाया। बनाया, जिन का नहीं बनाया, नहीं बनाया, किसने बनाया? अल्लाह कुरान में नहीं बताता एक शैतान को जिन किसने बनाया। शैतान, एक जिन को शैतान शैतान किसने कुरान बनाया के ये बताओ। मुताबिक, शैतान कुरान के मुताबिक हमेशा से था, अल्लाह ने शैतान को कभी नहीं बनाया। दिखा दे मुझे कुरान की आयत, देखो भाई, दिखाओ। अल्लाह ने उस शैतान को जब बोला जब तू इब्लिस है तू निकल जा, तो उसी टाइम नहीं, अल्लाह जब बोलता है झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोल रहे हो, सुन लो भाई तो बात, अल्लाह आर्ग्यूमेंट जब सुन लो, अल्लाह जब कहते आर्ग्यूमेंट हैं, सुनो, अल्लाह जो भी कहते हैं वो हो जाता है, मालूम है? जो आर्ग्यूमेंट। अबे कहते हैं हेलो, अल्लाह की- ओए मुंह बंद करके जरा सुन लो। अल्लाह ने जिन को बनाया था, मैं मानता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया था, मैं मानता हूँ। अल्लाह ने शैतान को नहीं बनाया था। शैतान एक खास चीज है। अल्लाह ने इब्लीस को कहा था तू चूंकि सजदा नहीं किया लिहाजा तू शैतान हुआ। अब शैतान को अल्लाह ने नहीं बनाया, शैतान पहले से कोई चीज थी, कोई एंटिटी थी। अल्लाह ने वही इब्लीस जो कि पहले फरिश्ता था, फरिश्तों की सफ में जाता था पहले, हालांकि जिन था लेकिन फरिश्तों की सफ में होता था, पहले वही जिन फरिश्तों की सफ में था। अब अल्लाह ने उसी जिन को शैतान की सफ में खड़ा कर दिया। इब्लीस को कहा अब तू शैतान की सफ में हो। मुझे बताओ अल्लाह ने पूरे कुरान में शैतान कहां बनाया? अल्लाह ने शैतान नहीं बनाया। शैतान अल्लाह की तरह हमेशा कुरान में हमेशा से वजूद में है। शैतान का कभी भी अल्लाह ने क्रिएशन नहीं बताया कुरान के अंदर। जैसे जिन को, जिन जिसका नाम इब्लीस है पहले फरिश्तों की सफ में खड़ा किया था, अब उसी जिन को शैतान की सफ में खड़ा कर दिया, फुल स्टॉप, और तो कुछ नहीं हुआ। शैतान नहीं बनाया अल्लाह ने, साबित करो शैतान बनाया अल्लाह ने, हाँ तो मैं बताता हूँ ना, बताओ, मैं बताता हूँ। बताओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का नाम पहले है, शैतान से बचने के लिए अल्लाह ने मैंने ये आयत पूछा है बनाया है। अल्लाह को शैतान, अल्लाह ने शैतान को कहां बनाया? मुझे उसकी आयत दे दो। भाई आयत अगर तुमको चाहिए तो कोई मुफ्ती साहब से बात करो, हम मुफ्ती तो नहीं है कि यहाँ पे तुमको बाबा आयत जी का देते ठुल्लू रहे, लेने आए हो तुमको आप, बस। यहाँ पे एक सेकंड, आधे घंटे से यहाँ पे जो किलकिल कर रहे हो वो बाबा जी का ठुल्लू लेने आए हो। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।